Hello students, welcome to the class. Students, in the last class I started the topic list. पिछले क्लास में हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था. We saw what is the definition of a list, how you can create different types of list. Then we saw the comparisons between list and strings, जिसमें हमने similarities and differences जो list और string के बीच में है वो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था. Today students we are going to learn about list operations. That means what are the operations that can be performed on a list that we are going to see now. The first one is traversing a list. The first operation is traversing a list. This is the first operation that can be performed on a list. What do you mean by traversing a list? It means accessing and processing each element of a list. Once again I am telling, traversing means accessing and processing each element of a list is called as traversing. For traversing a list you need for loop. For loop हमने पढ़ा था. Traversing के लिए for loop को use किया जाता है. The syntax for writing this is you have to write for item in list, then you have to give colon, then here you have to write process item here. This is the syntax. So students, this is the syntax for traversing a list. For this you have to use for loop, for item in list, then colon, process item. What item you want to process from a list, that will come here. We will see one example. See here, this is the list L equals to Python. You can see each and individual characters are treated as an item of a list. That means P एक item है, Y is also an item of a list. So the indexing for this list will be from 0 to size minus 1. That means the first item, that is P, is stored in the index 0. So this is the list. Now if I want to traverse it, then I have to use for loop. For you have to write, then here you have, I have given the item as A in L. See here, traversing means you have to use for loop for item. What item I have given? A. That means any item you can give. Then in the list, in which list you want to traverse, किस list को आपको process करना है, किस list का items को आपको access करना है, and you want to process that item, that list you have to write. Then colon, then what is the process item here? What I want to process? I want to access individual element of the list one by one. Then I want to print the items. यानी कि मैं जो भी आइटम्स है इस लिस्ट में उसको मैं एक्सेस करना चाहती हूँ. देन आई वांट टू प्रिंट दैट आइटम इन सेपरेट लाइन्स. ईच एंड इंडिविजुअल आइटम विल बी टेकन फ्रॉम दिस लिस्ट एंड इट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट्स, अगर इस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, देन व्हाट आउटपुट यू विल गेट? यू विल गेट आउटपुट लाइक दिस. द फर्स्ट आइटम इज P, इट विल बी प्रिंटेड P. Then it will take the second item, it will access the second item, that is Y, and it will print the item. Here you have to remember, when it is taking or accessing individual item from the list, it will be printed. If you are using print, it will be printed in the next line, not on the same line. So it will come like this, Python. Each and individual elements are accessed from the list and it is printed in separate lines. Clear? So in this way you will get the output if you want to traverse a list. ये example है, इस तरीके से आप traverse कर सकते हैं. So the main thing is traversing में क्या होता है, हर एक individual item को process किया जाता है and you are getting the output accordingly. Students, the second operation on list is joining a list. What do you mean by joining? Joining means you want to concatenate two or more list items or two or more list to get a concatenated list. यानी कि joining a list में क्या होगा, you will have two lists, two separate lists will be there. If you concatenate it, if you join it with the help of concatenation operator. String में हमने concatenation operator पढ़ा था. What was that? It was plus symbol.
प्लस सिंबल को हम एज ए कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं. सो हियर इन लिस्ट ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑपरेटर ओनली फॉर ज्वाइनिंग अ लिस्ट. विल सी वन एग्जाम्पल. दिस इज द two list L1 and L2. Here is a items. Now if I want to join these two list, दो list को अगर हमें join करना है, then what you should write? This is the prompt. You have to write L1 plus L2. If we write like this L1 plus L2, what output you will get? As I told, plus what it will do, it is not going to add these two values. ये आपको ध्यान देना है. प्लस ऑपरेटर देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है सो वी हैव टू ऐड. नो, हियर इट इज यूज्ड एज ए कंकैटिनेशन जस्ट टू जॉइन द टू लिस्ट. सो इट विल फर्स्ट टेक द फर्स्ट लिस्ट दैट इज 1 2 5. दिस इज फॉर L1. दिस इज द फर्स्ट लिस्ट. इट शुड बी कंकैटिनेटेड विथ L2. तो L2 में जितने भी आइटम्स है दैट विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लिस्ट. यहाँ पर एंड होता है फर्स्ट लिस्ट के आइटम्स, देन द सेकेंड लिस्ट में जो भी आइटम्स है दैट विल बी एडेड हियर. सो यू विल गेट द आउटपुट एज 1 2 5. दिस इज L1. इट इज कंकैटिनेटेड विथ L2 दैट इज 3 6 7. सो यू आर गोइंग टू गेट अ कंकैटिनेटेड लिस्ट. फाइनली आपको सिंगल एक लिस्ट मिलता है. दैट इज द ऑपरेशन ज्वाइनिंग अ लिस्ट. Hope it is clear to you. Next, after joining a list, next operation is replicating or repeating a list. Students, see here, in order to replicate or repeat a list, string में हमने पढ़ा था what operator we used? We used the operator asterisk, जो हम normally into के लिए use करते हैं. So asterisk is used as a replication operator here. List also. That means asterisk हम use करके if you are specifying any integer value into 2 into 3, that many times it will be repeated. The list will be repeated the times that you have specified. For example, the list is L1. L1 is the list. Items are 2 4 6. Now if I want to replicate it, replicate के लिए हमें क्या use करना है? Into operator use करना है. Just I want to replicate this list. How many times? Suppose I want to replicate into 2 times. That means आपको पहले लिस्ट का नाम लिखना है, देन आप इनटू ऑपरेटर दैट इज एस्ट्रिक यूज करेंगे, देन आपको यहाँ पर इंटीजर वैल्यू स्पेसिफाई करना है, एनी न्यूमरिक वैल्यू और इंटीजर वैल्यू. इट विल इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रेप्लिकेट द लिस्ट. कितनी बार आपको रिपीट करना है या कितनी बार रेप्लिकेट करना है आपको उस लिस्ट को, वो आपका ये इंटीजर वैल्यू इंडिकेट करेगा. नो इफ आई राइट लाइक दिस L1 इंटू 2, L1 आपको पता है 2 4 6, 2 बार आपको रेप्लिकेट होना है. सो यू विल गेट द आउटपुट एज 2 4 6 1 टाइम. In continuation to this, it will be repeated again 2 4 6. So at the end in the output you will get a single list. लेकिन यहाँ पर लिस्ट क्या होगा, रेप्लिकेट हो जाएगा. तो यहाँ पर ध्यान देना है, रेप्लिकेशन में जब भी आप इनटू देते हैं आपको जो भी वैल्यू दे रहे हैं दैट शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप ओनली. क्लियर स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन लिस्ट इज स्लाइसिंग अ लिस्ट. स्ट्रिंग स्लाइसेस हमने पढ़ा था. स्ट्रिंग स्लाइसेस में क्या होता है, यू आर गोइंग टू टेक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. लाइकवाइज स्लाइसिंग अ लिस्ट मीन्स यू आर गोइंग टू टेक पार्ट ऑफ अ लिस्ट, यानी कि सब पार्ट आप लेंगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट से, जिसमें आप स्लाइसिंग किसके बेस पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडेक्स. जैसे स्ट्रिंग में हम करते थे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है. लिस्ट में भी आप यूजिंग इंडेक्स रेंज, आपको इंडेक्स बताना है व्हाट इज द लोअर लिमिट एंड व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द स्लाइसिंग. सो हियर यू हैव टू राइट लाइक दिस, यू हैव टू गिव द सीक्वेंस, देन लिस्ट नेम. First you have to give the start index value, that is the lower limit, then you have to give the stop index value, that is the upper limit. This is the syntax for slicing a list. यानी slicing में भी आपको SEQ that is sequence equals to L. L is the list. लिस्ट आपका जो भी होगा वो नेम आपको लिखना है, लिस्ट नेम लिखना है. देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू गिव द रेंज. रेंज आपको बताना है इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा एंड व्हाट इज द स्टॉप वैल्यू, व्हाट इज द एंड वैल्यू ऑफ दैट सब पार्ट. सो विल सी वन एग्जाम्पल. सी हियर, सपोज द लिस्ट इज L. L equals to, this is the items of the list.
नाउ बिफोर सीइंग दिस एग्जाम्पल, फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द इंडेक्स वैल्यू. आपको पता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, सो हम यहाँ पर पहले इंडेक्सिंग लिख लेंगे सो दैट आप क्लियरली स्लाइसिंग कर पाएंगे. You can see the index start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It goes up to 8. Now, if I write SEQ, sequence equals to L of 3 to minus 3. Syntax मैंने बताया था, first you have to give the start value. यानी ये जो 3 है that is the start value, start index value. Then end कहाँ पे हो रहा है? -3. That is the end value, stop value. So अब आप अगर इस सीक्वेंस को प्रिंट करते हैं, यू आर गोइंग टू टेक पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में टोटल 9 आइटम्स आर देयर, टोटल 9 आइटम्स है, इसीलिए इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है अप टू साइज -1, 9 माइनस 1 दैट इज 8. तो टोटल 9 आइटम्स में आप सब पार्ट, यू वांट टू टेक सब पार्ट ऑफ अ लिस्ट. आप कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चाहते हैं? फ्रॉम 3 टू -3. तो जो स्टार्ट वैल्यू होता है वहाँ से आपको वैल्यूज को लेना है. सो इफ यू आर प्रिंटिंग दिस लिस्ट, दिस इज सीक्वेंस, so it will start from the index value 3, not the third element. 3 means starting index value. So you can see then in the index value 3, what is the item? That is 20. So ये आपका starting value है. 3 means not the third element. आपको ये नहीं सोचना है कि third element 14 है, वो नहीं है. आपका ये जो लिखते हैं फर्स्ट इंटीजर जो आप लिखते हैं दैट इज द स्टार्ट वैल्यू. तो इंडेक्स वैल्यू 3 में क्या है? 20. सो आउटपुट विल बी, first you will get 20, then it will go up to -3. बैकवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से माइनस में दिया गया है. बैकवर्ड इंडेक्सिंग आपको पता है इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर -1. तो -3 आपका कहाँ होगा? -1, -2, -3. तो आपको पता है जो भी आप स्टॉप वैल्यू देते हैं दैट -1 उसके प्रीवियस वैल्यू तक आपको लेना है. दैट मीन्स यू हैव टू टेक फ्रॉम 3 to 5. सो द आउटपुट विल बी 20, 22, 24. This is the output. You can see start value is 3, 20, stop value is -3. तो आपको -3 तक नहीं लेना है, उससे पहले -1, -3, -1 that is -4. तो यहाँ तक आपका stop value होगा. So that is 20, 22, 24. That means out of the 9 items you are going to take sub part of a list. Sub part में कितने items है? Only 3 items are there. That means you are slicing the list based on the range of index given. This is the lower limit and this is the upper limit. Clear? Now next example, suppose if I write L directly, I have used slicing L, that is a list name, then I have given the range as 3:30. Now see here, 3 means again the starting index value that is 3, but see the upper limit. Upper limit is 30. Whether 30 is there? यहाँ पर देखिए इंडेक्स वैल्यू 30 है? No. So what output you will get? Whether there will be error? No. पाइथन में जब आप स्लाइसिंग करते हैं, जैसे स्ट्रिंग में भी जब आप स्लाइसिंग करते थे एंड यू आर गिविंग द लिमिट अपर और लोअर लिमिट बियॉन्ड द रेंज, जो आपका रेंज में नहीं है, तब भी आपको एरर शो नहीं होता था. सेम यहाँ पर भी है, लिस्ट में भी इफ़ यू आर गिविंग अ लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दैट इज नॉट इन द रेंज, वो बियॉन्ड द लिमिट है, देन ऑल्सो यू विल गेट द आउटपुट नॉट एन एरर. सो आउटपुट आपको कैसे मिलेगा? यू नो द स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू 3, इट इज़ देयर. जो स्टॉप वैल्यू है 30, इट इज़ नॉट देयर, सो इट विल गो 30 मीन्स अप टू 29. तो 29 तक तो वैल्यू नहीं है, अप टू 8 तक है. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 एंड इट विल टेक टिल द लास्ट वैल्यू. यानी कि जो लिस्ट आपको मिलेगा, जो सब पार्ट आपको मिलेगा, वो आपका स्टार्टिंग होगा 3 से, दैट इज 20, देन इट विल गो टिल द लास्ट वैल्यू दैट इज 34. सो यू विल गेट द आउटपुट एज 20, 22, 24, 30, 32 and 34. This is the output. You can see start value is 3 and it goes till the last value. क्योंकि 30 दिए हैं, 30 मीन्स अप टू 29 तक लेना है. आफ्टर 8 नो वैल्यूज आर देयर, सो नथिंग इज प्रिंटेड. यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस. सो इट इज अपर लिमिट इज बियॉन्ड द रेंज. नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू सी L of -15:7. You can see this is as per the forward indexing, positive value is given,
एंड दिस इज एज पर द बैकवर्ड इंडेक्सिंग. बैकवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से क्या, -15. -15 आपका देखिए यहाँ पर रेंज में आता है, -3. आप यहाँ पर भी जाएंगे तो आपको -15 रेंज. इट इज़ मच स्मॉलर. जो ये रेंज दिया हुआ है वो लिस्ट के हिसाब से स्मॉलर है, लेसर है. सो हियर आउटपुट विल बी, यहाँ पर भी आपको एरर नहीं मिलेगा. यू विल गेट द आउटपुट. इट विल टेक फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि इसके पहले वैल्यूज़ नहीं है. अप टू 15 मीन्स 14 तक आपको लेना है. सॉरी 15 मीन्स इट विल बी टेकन फ्रॉम अप टू -16. सो नो वैल्यूज आर देयर. 0 से पहले कोई भी वैल्यू नहीं है. तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ कैसे मिलेगा, 10, 12, 14. यहाँ पर देखिए स्टॉप वैल्यू दिया हुआ है. स्टॉप वैल्यू इज 7. 7 में देखिए यहाँ पर क्या है, 7 मीन्स यू हैव टू टेक -1. जो भी स्टॉप वैल्यू है वहाँ आपको -1 लेना है, उससे एक प्रीवियस वैल्यू तक ही आपको लेना है. तो 7 से पहले इंडेक्स वैल्यू 6 है, द वैल्यू इज 30. सो इट विल बी प्रिंटेड फ्रॉम 10 to 30. दिस इज द आउटपुट. तो यहाँ पर लोअर लिमिट बियॉन्ड द रेंज था, अपर लिमिट दिया हुआ है 7. 7 - 1 इट विल टेक अप टू 7 - 1 दैट इज 6. सो इंडेक्स वैल्यू 6 में आपका वैल्यू क्या है, 30 है. सो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द 0 इंडेक्स वैल्यू, 10 से लेकर 30 वैल्यू तक प्रिंट कर रहा है. सो दिस इज द आउटपुट. इन दिस वे यू कैन स्लाइस अ लिस्ट. इस तरह से आप स्लाइसिंग अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन प्रैक्टिस मेनी मोर एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट. Now, in both these examples, we have seen whatever values, whatever sub part you are taking from this list. इसमें भी आप तीनों एग्जाम्पल में देखिए, जो भी आप सब पार्ट ले रहे थे वो स्टार्ट और स्टॉप के बीच के कंसिक्यूटिव वैल्यू, दैट मीन्स कंटिन्यूसली जो स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू के बीच का वैल्यूज होता था वो आप कंटिन्यूसली लेते थे. दैट मीन्स यू आर टेकिंग द कंसिक्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. Now, if I don't want to take consecutive element, that means मुझे continuously सारे elements start और stop के बीच का नहीं लेना है. I want to start from certain index value, then I want to skip every first element or second element. That means I want to take step in the slicing. So in list it supports slicing of a list with step value. That means you can apply slice steps. The same list we will take and we'll see the example. यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, slice step. यहाँ पर आपको ध्यान देना है. Now we are going to see slice step. Slicing में आप कैसे step value देते हैं. आपको पता है जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप दो वैल्यूज देते हैं, दैट इज द स्टार्ट एंड स्टॉप. इफ यू वांट टू गिव द स्टेप वैल्यू देना है, अगेन यू हैव टू गिव कोलन, देन यू हैव टू राइट एनी इंटीजर वैल्यू. व्हाट इज द स्टेप वैल्यू यू वांट टू टेक. सपोज आई हैव गिवन 2. What does it mean? ये स्टेप वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंक्लूड एवरी सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. स्टार्ट आपको 0 से होना है. 0 के बाद नॉर्मली क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 4 इंडेक्स वैल्यू तक आपका ये पार्ट लेता है, स्लाइसिंग होता है. देन अगर आप स्टेप वैल्यू देते हैं, दैट मीन्स यू डोंट वांट टू टेक एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to 4. 0 to 4 के बीच का आप कंटिन्यूसली एलिमेंट्स नहीं चाहते हैं. यू वांट टू स्किप एवरी फर्स्ट एलिमेंट, दैट मीन्स यू वांट टू इंक्लूड एवरी सेकेंड एलिमेंट इंक्लूडिंग वन एलिमेंट इन बिटवीन. विल सी इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. 0 में कौन सा वैल्यू है, 10. देन नेक्स्ट इज 12, दैट इज इंडेक्स वैल्यू 1. सो आपने स्टेप वैल्यू दिया हुआ है 2. 2 का मतलब क्या होता है, इट विल इंक्लूड एवरी सेकेंड एलिमेंट. दैट मीन्स ये पहला एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 1, 2. दैट मीन्स इन बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स इट विल स्किप वन एलिमेंट, दैट इज द स्टेप वैल्यू. तो स्टेप वैल्यू आप जो भी देते हैं वो वैल्यू को वो इंक्लूड करता है. दैट इज इफ यू आर गिविंग 3, दैट मीन्स एवरी थर्ड एलिमेंट. इफ यू आर गिविंग 4, एवरी फोर्थ एलिमेंट. तो जो स्टेप वैल्यू होगा उसमें आपको -1 करके देखना है. 2 मीन्स वन आइटम विल बी स्किप्ड. इफ यू आर गिविंग 3 मीन्स इन बिटवीन टू वैल्यूज विल बी स्किप्ड. So we'll see according to this 10, then 14, one element will be skipped, then second element is 14. After 14, what is the second element? You have to skip first element 20, then 22. Then you have to see the stop value also. Stop value is 5. 5 means you have to take up to 4. Index value 4 तक आपको लेना है. So इंडेक्स वैल्यू 4 के हिसाब से लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 22. आफ्टर दैट आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि स्टॉप वैल्यू आपका 5 है. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेप वैल्यू यू हैव टेकन द सब पार्ट ऑफ अ लिस्ट.
दिस इज द स्लाइस स्टेप। इस तरह से आप कोलन के बाद स्टेप वैल्यू दे सकते हैं एंड इट विल इंक्लूड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप वैल्यू। विल सी वन मोर एग्जाम्पल। सपोज इफ आई गिव here I won't start from 0 2 colon now this is also a slicing based on step value. Here the step value is 3 means you have to include every third element. You have to skip how many elements you have to skip? जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया होगा स्टेप वैल्यू आपको -1 लेना है, उतना एलिमेंट आपको बीच में स्किप करना है। तो 3 - 1 दैट इज 2। आपको हर थर्ड एलिमेंट को लेना है और इन बिटवीन जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के बीच में 2 एलिमेंट आपको स्किप करना है। सो हियर इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 मीन्स द आइटम इज 14, इंडेक्स वैल्यू 2 में व्हाट इज द आइटम 14, देन इट विल गो अप टू 8 मीन्स 8 - 1 7, यहाँ तक आपका लेगा। स्लाइसिंग में क्या होगा 8 - 1 अप टू 7 तक लेना है। देन आपको ध्यान दें यहाँ पे स्टेप वैल्यू दिया हुआ है। स्टेप वैल्यू मीन्स आफ्टर 14 यू हैव टू स्किप 2 एलिमेंट्स, दैट मीन्स यू हैव टू स्किप 20 22। नेक्स्ट एलिमेंट इज 24, क्लियर। आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू स्किप 2 एलिमेंट्स, then you have to take the next one, but the stop value is 8, so whether it will take 34? No, because you have to take stop value -1, जो भी आप रेंज देते हैं वहाँ से आपको -1 उससे प्रीवियस वैल्यू तक ही लेना है 7। सो इसके बाद जब आप 2 वैल्यू को स्किप करते हैं यू आर नॉट गेटिंग द स्टेप वैल्यू 3 बेस्ड ऑन दिस रेंज, सो यू विल गेट द आउटपुट एज 14, 24। आउट ऑफ 9 items you have got only 2 items. You have taken sub part of this list by using slice step. Clear? So if you are not specifying this step value, जैसे आपका जो भी रेंज है स्टार्ट और स्टॉप के बीच का वो वैल्यूज़ को प्रिंट करता है। इफ़ यू आर गिविंग ए स्टेप वैल्यू देन अकॉर्डिंग टू द स्टेप वैल्यू ही आपका आउटपुट मिलेगा। 2 होगा दैट मीन्स इंक्लूड एवरी सेकेंड एलिमेंट, 3 मीन्स इंक्लूड एवरी थर्ड एलिमेंट बाय स्किपिंग 2 एलिमेंट्स in between. Clear? Students, next we are going to see how you can use list slices to modify a list. Suppose you want to override one or more items of a list. That means you want to override one or more items with one or other element of a list. यानी कि आप slicing use करके you want to override something on a list. For that you can use list slices. Suppose the list is L. Here the items are 1, 2, 3. Total 3 items are there in the list. L equals to 1, 2, 3 that we have given. Now if I want to use slices to list for list modification, you have to write, suppose if I write 0:1 equals to suppose if I write L of 0 to 2 equals to 0,1. What does it mean? You want to override the values exist in the range 0 to 2. 0 to 2 means आपको क्या लेना है, यहाँ पर ये 0, 1, 2. This is the index value. यानी आपको start value 0 है according to slices. Stop value is 2. 2 means आपको यहाँ तक लेना है 2 - 1 that is ये 2 values आपको लेना है 1 और 2. Now you want to override values exist in this list with the index value 0 to 2 with the values, the new value is 0,1. that means ये जो इंडेक्स वैल्यू है 0 और 1 इसका जो वैल्यूज है उसको आपको ओवरराइट करना है कौन से वैल्यू से 0 और 1 से. सो इफ आई प्रिंट द लिस्ट L आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट व्हाट आउटपुट यू विल गेट, द न्यू लिस्ट इज 1, 2. ये वैल्यू आपका रिप्लेस हो गया है विद द वैल्यू 0,1. जो इंडेक्स वैल्यू 2 में जो वैल्यू है दैट इज 3, दैट इज नॉट चेंज, दैट इज नॉट रिप्लेस्ड. तो रिप्लेस नहीं हुआ है तो यानी कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा. सो यू विल गेट द न्यू लिस्ट एज 0,1,3. क्लियर? सो इस तरह से आप स्लाइसिंग यूज करके यू कैन मॉडिफाई द लिस्ट. यहाँ पर मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है, यू आर ओवर राइटिंग, यू आर रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ अ लिस्ट. यहाँ पर ध्यान देना है, आप यहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं, और जिस वैल्यू से आप रिप्लेस कर रहे हैं वो सिंगल वैल्यू भी हो सकता है. इट कैन बी मोर देन वन वैल्यू ऑल्सो, वन आइटम ऑल्सो. क्लियर?
We'll see one more example. Suppose again this is the list 1, 2, 3. We assume it as the list is 1, 2, 3. If I write L of 0:2 equals to A. अब हम इस लिस्ट को नहीं मानेंगे, हम मानते वापस से यही लिस्ट है हमारा L equals to 1, 2, 3. If I write L 0:2, आपको पता है again it will take from 0 to 2 means 0 to 1, that is 0 and 1. Now here I have written 0,1, that means I am going to overwrite, I am going to replace with 2 values. 2 वैल्यू रिप्लेस हो रहा है विथ 2 वैल्यूज, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू को रिप्लेस करना है बट विथ ओनली 1 वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू? A. समझ में आ रहा है? सो इफ अगेन आई प्रिंट दिस लिस्ट, इफ आई राइट L, व्हाट आउटपुट यू विल गेट? नाउ द न्यू वैल्यू, जो ये 2 रेंज है 0 और 1, वो वैल्यू किससे रिप्लेस हो रहा है? इट इज रिप्लेस्ड विथ A. द नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू 2 चेंजेस नहीं हो रहा है क्योंकि 0 to 2 मीन्स इट विल टेक अप टू 1 ओनली, सो 3 विल बी देयर. सो दिस इज द आउटपुट. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर यू कैन गिव 1 और मोर वैल्यूज. यहाँ पर सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू है. इस तरीके से आप यू कैन ओवरराइट 1 और मोर वैल्यूज विथ 1 और अदर एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट. आप एक या एक से ज़्यादा वैल्यू से एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू स्लाइसेस, आप रेंज में इतने से इतने के बीच का वैल्यूज को आपको रिप्लेस करना है. यू कैन डू लाइक दिस. क्लियर? दिस इज द यूज ऑफ स्लाइसेस इन लिस्ट मॉडिफिकेशन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट. इट इज अ स्मॉल सब टॉपिक अंडर लिस्ट. What does it mean? True copy of a list. Normally in order to create a list we use the assignment operator equal to. Assignment operator जो equal to होता है वो हम use करते हैं. Suppose I have created a list that is color equals to red, this is a list, the name of the list is color. Now if I write B equals to color, here the assignment operator is equal to. ये assignment operator है, तो normally जब भी हम assignment operator use करते हैं तो जब B equals to color लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है? क्या जो list L color है उसका क्या copy B में transfer होता है? Clear? यानी कि if you are using assignment operator, whether a copy of the list is created or not, क्या copy create होता है? नो. जनरली जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं वी यूज इक्वल टू ऑपरेटर एंड वी राइट स्टेटमेंट्स लाइक दिस. इसका कॉपी क्रिएट नहीं होता है. दैट मीन्स द लिस्ट बी विल हैव द सेम वैल्यू व्हाट द लिस्ट कलर हैज़. क्लियर? यानी कलर जो लिस्ट है उसमें जो भी वैल्यू है द सेम वैल्यू विल बी पॉइंटेड बाय द लिस्ट बी. दैट मीन्स इन मेमोरी इफ इट इज स्टोर्ड लाइक दिस, द फर्स्ट वैल्यू इज रेड, blue, green. 3 items are there in the list. The name of the list is color. This is the index value. Now if you are written like this, B equals to color, what does it mean? Both the names color and B, it will refer to the same memory. यहाँ पर क्या होगा? Because these two labels it will act as a label फॉर द लिस्ट. ये जो लिस्ट है उसका लेबल एक लेबल आपने बनाया कलर एंड यू हैव अगेन क्रिएटेड ए लेबल बी इक्वल्स टू कलर. सो क्या होगा? जो लिस्ट ओरिजिनल कलर है द सेम वैल्यू व्हाट इज पॉइंटेड बाय द लिस्ट कलर, द सेम वैल्यू विल बी पॉइंटेड बाय द लिस्ट बी. समझ में आ रहा है? यानी कि इसके आपको क्या समझ में आ रहा है? इट इज़ नॉट क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ द लिस्ट. दोनों जो लिस्ट है वो सेम वैल्यूज को पॉइंट कर रहा है, रेफर कर रहा है. So this is called as shallow copy. It is not a true copy. Copy नहीं है, just shallow copy है. Now, if I want, what it will do? If you are changing any values, अगर आप इसमें किसी भी values को change करते हैं, red, blue और green, if you are replacing any value, it will affect both the list. क्योंकि दोनों सेम मेमोरी को रेफर कर रहा है. इट इज रेफरिंग टू द सेम लेबल. सो इफ यू आर चेंजिंग एनी ऑफ द वैल्यूज इट विल रिफ्लेक्ट इन बोथ द लिस्ट. नाउ इफ आई वांट इट शुड बी कॉपीड. दैट मीन्स ओरिजिनल लिस्ट से कॉपी होना है, देन आपका यहाँ पर वो वैल्यूज को पॉइंट करना है. सो यू हैव टू राइट बी इक्वल्स टू
सिंपली आपको लिखना है b इक्वल्स टू लिस्ट देन कलर। यहाँ पर आपको वर्ड यूज करना है लिस्ट। ये लिखने का मतलब क्या होता है, यू आर क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ द लिस्ट कलर एंड यू आर स्टोरिंग इट द वेरिएबल b। सो दैट मीन्स इस तरह से आप लिखेंगे। सो यहाँ पर b सेपरेटली वैल्यू को रेफर करेगा, इट विल बी रेड ब्लू ग्रीन। नाउ दिस इज टू सेपरेट लिस्ट, इफ यू आर मेकिंग एनी चेंजेस इन दिस लिस्ट इट विल नॉट रिफ्लेक्ट टू दिस लिस्ट, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इट इज कॉल्ड एज डीप कॉपी। सो मेकिंग अ ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए आपको लिस्ट लिखना होता है। समझ में आपको? नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी लिस्ट मैनिपुलेशन, व्हाट आर द फंक्शंस एंड मेथड्स अवेलेबल फॉर लिस्ट, that we will see in the next class.